Yes, students, hello and good morning and welcome to the class. I hope you all are good and safe at your places. And now, as you all know, that we are going to start our chapter number 5, that should wizard hit the mommy, from your book Vistas of your class 12th English. And this chapter, as we all know, that हमने अपनी previous classes में इसको थोड़ा सा किया था chapter. So with the brief introduction and recap of this chapter, we will continue with the part that was left. Okay. So see, chapter number 5, Should Wizard Hit the Mommy? It's written by John Updike. Now, he has written a very beautiful and very interesting story about the worldview of a little child. And you know, छोटे बच्चे जब होते हैं, if they are up to asking a question, वो इतने difficult moral questions पूछते हैं that it is sometimes difficult for us to answer back. Now, these kind of difficult moral questions are raised during a story session with the father. एक छोटी सी बच्ची है, डॉटर जो, शी इज आस्किंग हिज फादर, जिनका नाम है जैक, वो जैक से क्वेश्चन पे क्वेश्चन करती हैं. दोज आर वेरी डिफिकल्ट मॉरल क्वेश्चन जो वो एक स्टोरी सेशन के दौरान करते हैं, विच आर रियली डिफिकल्ट एंड विच की केप्ट दी फादर जस्ट थिंकिंग, और है ना, एक हैसल में छोड़ देती है फादर को, that how he is able to answer the questions of the child and satisfy her. Now this is a story about a girl named Jo. छोटी सी बच्ची है. Now she is in a regular habit कि उसके फादर उसे स्टोरी सुनाते हैं. एंड रेगुलरली रोज रोज आप कहाँ से नई स्टोरी लाओगे, तो फादर यूज टू क्रिएट स्टोरी फ्रॉम आउट ऑफ हिज ओन माइंड. फादर अपने ही दिमाग में से एक स्टोरी क्रिएट कर देते हैं फॉर हर. Okay, what does the father do? Father creates the story out of his own mind. रोज नई स्टोरी. एंड नाउ फॉर क्रिएटिंग दो स्टोरीज, वहां पे क्या होता है, दे ऑलवेज हैव वन कैरेक्टर. उनके पास हमेशा एक कैरेक्टर होता है जिसको उन्होंने नाम दे रखा है रॉजर. अब रॉजर के साथ में डेली वो एक, रॉजर इज द नेम ऑफ द कैरेक्टर, बट रेगुलरली क्या होता है, द कैरेक्टर कीप्स ऑन चेंजिंग. ये कैरेक्टर उसमें बदलते जाते हैं, बदलते जाते हैं. लाइक हाउ, सी. So now what happens in that particular evening, and was Saturday naps like every day today, Jack told his story, daughter Joe, a story out of his head. Same. ये कस्टम शुरू हुआ था when she was 2 years old and itself now nearly 2 years old. ठीक है. And his head felt empty. और अभी 2 साल में जो को, जैक को ऐसा लगने लगा that his head is feeling empty. दिमाग खाली हो रहा है. there is nothing inside his head. वो क्या स्टोरीज बताएगा. Each new story was a slight variation of a basic tale. हर नई स्टोरी क्या है, is a slight variation of the basic tales. A small creature, usually named Roger. अब एक क्या है, छोटा सा एक क्रीचर है जिनका यूजुअली जिन्हें नाम वो देते हैं रॉजर. नाउ समटाइम्स ही टेल्स हर द स्टोरी ऑफ रॉजर फिश, समटाइम रॉजर स्क्विरल, sometime Roger Chipmunk, and some problems, and went with it to the wise owl. Now the owl told him to go to the wizard, and the wizard performed a magic spell and solved the problems. Now demanding in payment a number of pennies greater than the number that the Roger creature had. But in the same breath, directing the animal to the place where the extra pennies could be found. Roger was so happy. He played many games with other creatures and went home to his mother just in time to hear the train whistle that brought his daddy home from Boston. अब ऐसे एक पूरी स्टोरी. नाउ जैक डिस्क्राइब देयर सपर एंड द स्टोरी वाज ओवर. नाउ दिस वाज, यहाँ पे इस पॉइंट पे आके द स्टोरी इज ओवर. नाउ वर्किंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम, वो स्पेशली इस स्कीम पे उन्होंने डिसाइड किया कि किस तरीके से वो आज की स्टोरी को पूरा प्लांट करेंगे. नाउ इस स्टोरी पे वर्कआउट करते करते ही जस्ट फेल्ट टायर्ड, एंड स्पेशली we can say that but Saturday, because जो कभी भी नहीं सोती थी in naps anymore, and knowing this made their right seems futile. Now उन्होंने सोचा quickly is going to finish all these things, but ना जो को अभी naps नहीं आते थे. जो पूरी स्टोरी सुने बिना नहीं सोती थी, and once she gets interested in listening to the story, तो उसको नींद आती नहीं थी. तो दिस वे वी कैन से कि ये जो रिचुअल्स और वो बना रहे थे अपने दिमाग से, चीजों को डिसाइड कर रहे थे ना, ऑल दीज आर गोइंग टू बी अ फ्यूटाइल एफर्ट. नाउ लिटिल गर्ल, वो इतनी लिटिल भी नहीं थी. नाउ वो शी मेक्स हर वे, जब व्हेन शी बम्प्स हर लेग्स, तो वी कैन से दैट हाफ वे डाउन द बेड होती थी उसकी लेग्स. शी वाज नॉट दैट स्मॉल आल्सो, नॉट दैट लिटिल आल्सो, but we can say now at last she has taken up her sleeping position, pillows and the blankets and the shades of the curtain drawn, everything. She has a brother named Bobby who was 2 years old and he was already asleep with his bottle. Jack asked,
who shall the story be about today? Now the story session begins and Jack says कि आज किसके बारे में स्टोरी सुननी है? रॉजर रॉजर रॉजर. नाउ दे वर जस्ट थिंकिंग कि आज रॉजर के आगे क्या होना चाहिए. नाउ जो स्क्वीज्ड हर आईज, शट एंड स्माइल, एंड जस्ट इन अ थिंकिंग ऑर्डर उसने बोला, हर आईज ओपन्ड, हर मदर ब्लू स्कंक, और उसने बोला कि हम स्कंक की कहानी सुनेंगे आज. नाउ अ न्यू एनिमल, दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल. उन्होंने बोला स्कंक ये तो एक न्यू एनिमल है. नाउ स्कंक्स के बारे में नर्सरी क्लासेस में बात की गई है. स्कंक एक्चुअली एक ऐसा एनिमल होता है जो बहुत बुरा स्टिंक करता है. It stinks bad. Now having a fresh hero momentarily stirred Jack to creative enthusiasm. अब नया हीरो आ गया आज उनकी कहानी के लिए, तो इससे क्या हुआ, जैक के अंदर एक नया enthusiasm आया. And he started that once upon a time in the deep dark woods एक tiny सा creature था whose name was Roger Skunk. And he smelled very bad. Joe said yes, he smelled so bad that कोई भी दूसरा क्रीचर उसके साथ में खेलता नहीं था. Nobody likes to play with him. जो ने बहुत ही सैडली वी कैन से दैट उसने अपने फादर की तरफ देखा. And when he says that he would go out to play, everybody used to run away from Joe Skunk. Now they say skunk bad, so smell, और इतने ही उससे सब दूर भाग जाते थे. And they says, oh, everybody used to call, oh, here comes the Roger stinky skunk, stinky skunk. तो उसको stinky skunk बुलाते थे. And they would run away and Roger Skunk would stand there all alone and the two little round tears from her eyes fall. अब ये जो थे फादर कंप्लीटली उसके साथ में एक्ट कर रहे थे. ना फादर ने क्या किया, अपने फिंगर्स लिए और जो के चीक्स पे लगाया. उन्होंने बोला देखो ऐसे 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 उसके आंसू गिर रहे थे. एंड द टू वेरी प्रेशियस टीयर्स वर फॉलिंग डाउन. तो दिस वे ना वो पूरा एक रियल सा सीन क्रिएट कर देते कि ऑब्वियस चीज है, जब आप इतनी रियलिटी लेके आ जाओगे एक स्टोरी में, द चाइल्ड इज रियली गोइंग टू गेट इंटरेस्टेड. तो जो थी वो बहुत इंटरेस्टेड हो जाती थी उसमें. अब जो नाउ हमने एक इंट्रोडक्शन में एक चीज देखी थी, दैट क्वेश्चंस दैट द चिल्ड्रन कीप ऑन पुटिंग इन द स्टोरी सेशन. तो यहाँ पे जो ने जो फर्स्ट क्वेश्चन रेज किया, उसने बोला वोंट ही सी द आउल. उसने बहुत ही फेंटली, बहुत ही रफ एंड वॉइस में पूछा कि वो इतना परेशान था तो क्या वो अपनी परेशानी का सोल्यूशन लेने के लिए वो आउल के पास में नहीं जाएगा. नाउ फादर के एकदम से दिमाग में आया आउल, कौन सा आउल. अब वो यूजुअली उनके स्टोरीज में यही चीज होती थी. नाउ सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, जैक जस्ट फेल्ट. अब वो क्या थे, अब उस बच्चे के ना रिएक्शन ही कंटिन्यूसली ही केप्ट टू चेक हिज पोजीशंस एंड द सिचुएशंस. वो देखते थे कहीं इसको नींद तो नहीं आ रही, नींद तो नहीं आ रही, सो दैट ही कैन गिव अ टर्न टू द स्टोरी दैट वे कि ठीक है, इफ शी वांट्स टू स्लीप तो वो स्टोरी को कट शॉर्ट करके जल्दी फिनिश कर देगा. नाउ उसने बोला नो. फॉर अ मोमेंट उसको पता चला दैट जो इज नॉट गोइंग टू स्लीप अर्ली टुडे. नाउ ही वाज टेलिंग हर समथिंग ट्रू दिस टाइम, एंड समथिंग ऐसा कुछ बता रही थी दैट शी मस्ट नो. एंड उसने बोला आज मैं इसको स्टोरी के थ्रू ऐसी एक चीज बताऊंगा जिसके लिए मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, बिकॉज आई वॉन्ट हर टू नो अबाउट दिस थिंग, बिकॉज दिस थिंग इन रियलिटी इज ट्रू. उसे पता होना चाहिए. बट ऑन दैट अदर हैंड सडनली नीचे चेयर वगैरह फर्नीचर पूरा मूव करने की, स्क्रैप करने की आवाज आई, बिकॉज इन द लिविंग रूम वुडवर्क में वहां पे क्लेयर वॉज पेंटिंग समथिंग फर्नीचर एंड ऑल, एंड ही थिंक्स दैट ही शुड गो डाउन एंड हेल्प हर. तो उसने थोड़ा सा जल्दी जल्दी किया. एंड ही सेज वेल ही वॉक्ड अलोंग वेरी सैडली एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री. एक टिप टॉप करता हुआ वो एक ट्री के पास में आया, एंड इट वाज अ वेरी इनॉर्मस बिग आउल था वहां पे. गुड मिस्टर आउल, रॉजर स्कंक ने कहा. एंड ही सेज ऑल द अदर एनिमल्स, वो मुझसे दूर भाग जाते हैं, बिकॉज आई स्मेल सो बैड. सो यू डू, द आउल सेड कि हाँ तो तुम स्मेल तो करते हो, तुम बहुत ही बुरी स्मेल करते हो. एंड व्हाट कैन आई डू, और मैं क्या करूं बताओ. नाउ रॉजर स्कंक सेड एंड ही क्राइड वेरी हार्ड, विजार्ड विजार्ड गो शाउटेड. अब उतने में द लिटिल जो इज सेइंग कि अब वो क्या करेगा, क्या उसको विजार्ड विजार्ड के बारे में नहीं उसने कुछ कहा ना. जो इज कंटिन्यूसली. नाउ द फादर सेज, और इतना कहते ही लिटिल जो शी जस्ट सैट अपराइट, उठ के बेड से सीधी बैठ गई. नाउ द डैडी इज सेइंग कि जो is daddy telling you a story or today you are going to tell daddy a story. She says no no no, you tell me a story, then lie down and be sleepy. पापा ने बोला ठीक है तो मैं स्टोरी सुना रहा हूँ ना, you just lie down and try to sleep, सोने की कोशिश करो, ठीक है. नाउ उसने क्या बोला, नाउ उसने बोला नाउ ट्राई एंड स्लीप. नाउ उसने आगे जब ऐसे बोला no you me, then lie down and be sleepy. Her head relapsed onto the pillow and she said out of your head, उसने उसका जो हेड था
It relapsed onto the pillow and she said, out of your head. Well, the owl thought and thought and at last he said, why don't you see the wizard? उसने बोला well, owl ने सोचा सोचा and at last उसने क्या कहा, why don't you go see the wizard? तुम क्यों नहीं जाके wizard को देखते हो? Daddy what? उसने बोला क्या? उसने बोला कि डैड एक बात बताओ, ये जो मैजिक स्पेल्स होते हैं, ये जो जादू वगैरह होता है, इज इट रियल? नाउ न्यू फेज था ये, जस्ट दिस लास्ट मंथ एक रियलिटी फेज, जब उसे ये बताया, व्हेन ही टोल्ड हर, जब उन्होंने उसको बताया दैट स्पाइडर्स बग्स को खा जाते हैं, शी टर्न टू हर मदर एंड आस्क, डू दे रियली? उसने अपनी मम्मी से पूछा, सच में ऐसा होता है क्या मम्मी? एंड व्हेन क्लेयर टोल्ड हर दैट गॉड वाज इन द स्काई एंड ऑल अराउंड देम, शी टर्न टू हर फादर एंड इंसिस्टेड with a sly eager smile, क्या सच में गॉड होते हैं? नाउ शी इज कंटिन्यूसली इन हैबिट कि वो ये पूछते हैं कि क्या ऐसा सच में होता है, क्या ऐसा सच में होता है? दे आर रियल इन स्टोरीज, जैक आंसर्ड कर्टली। तो जैक ने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्डली कहा कि बेटा ये स्टोरीज में रियल होता है। शी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नरेटिव। ऐसा कहने से क्या हुआ? नाउ पुटिंग अप दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड दीज काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस इन बिटवीन, तो वो एक बीट को मिस कर जाते हैं बीच में से। एंड शी सेड, द आउल सेड, अब आउल ने क्या बोला? गो थ्रू द डार्क वुड्स अंडर द एप्पल ट्री इनटू द स्वैम्प ओवर द क्रिक। उन्होंने, आउल ने बोला दैट गो थ्रू द डार्क वुड्स, इन डार्क वुड्स में से जाओ, अंडर द एप्पल ट्री एंड इनटू द स्वैम्प ओवर द क्रिक। अब उसने जब ये बोला तो जैसे ही क्रिक वर्ड आया तो शी सेड दैट डैड व्हाट इज क्रिक? क्रिक क्या होता है? तो उन्होंने बोला एक लिटिल रिवर। नाउ यू कैन सी जो है वो कंटिन्यूसली क्वेश्चन ऑन क्वेश्चन पुट अप किए जा रही है। नाउ उन्होंने बोला व्हाट इज क्रिक? उन्होंने बोला ओवर द क्रिक एंड देयर विल बी द विजार्ड हाउस, वहां पे तुम्हें एक विजार्ड का हाउस मिलेगा। एंड दैट्स द वे रॉजर स्कंक वेंट। एंड प्रीटी सून रॉजर स्कंक एक छोटे से व्हाइट हाउस के पास में पहुंचा, उसने डोर नॉक किया एंड जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल। अब रियलिटी बनाने के लिए वहीं पे बैठे हुए जैक ने, एक विंडो थी, विंडो सिल पे उसने नॉक किया एंड अंडर द कवर, ब्लैंकेट के अंदर जो थी, जो स्टॉल फिगर जस्ट क्लैंच्ड इन एन इनफर्टाइल थ्रिल, ओ अब विजार्ड आएगा, ऐसे करके पूरा। एंड देन एक टाइनी सा लिटिल मैन बाहर आया। अब आपने विजार्ड, यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे हो, ये विजार्ड की फोटो है। हम भी जब जादूगर के विजार्ड की बात करते तो वो ऐसे ही होते हैं। टाइनी लिटिल ओल्ड मैन जस्ट केम आउट विद अ लॉन्ग व्हाइट बियर्ड एंड अ पॉइंटेड ब्लू हैट। एंड उन्होंने क्या बोला? व्हाट्स इट? व्हाट इज वांट? दैट इज, तुम्हें क्या चाहिए? यू स्मेल ऑफुल, तुम तो बहुत गंदी स्मेल आ रही है। द विजार्ड्स वॉइस वाज वन ऑफ जैक्स ओन फेवरेट इफेक्ट। और विजार्ड की जो वॉइस थी ना, वो जैक का अपना ही एक फेवरेट इफेक्ट था। जैक अक्सर स्टोरी में कहीं ना कहीं उस इफेक्ट को जरूर यूज करते थे। तो दिस वे ही यूज्ड दिस इफेक्ट हियर आल्सो एंड ही डिड इट बाय स्क्रंचिंग अप हिज फेस। उन्होंने ये कैसे किया? अपने फेस को पूरा स्क्रंच अप करके एंड समहाउ वीनिंग थ्रू हिज आईज, और अपनी आईज के थ्रू वीन करके, विच फेल्ट फॉर द इंटरवेल रियूमी, और जिसने फील किया फॉर द इंटरवेल रियूमी, कहीं ना कहीं इंटरवेल सा हो गया था यहाँ पे उनकी स्टोरी का। एंड ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम, एंड उन्होंने ऐसा फील किया दैट ही वाज एन ओल्ड मैन विच सूटेड हिम। I know it, Roger Skunk said. मैं जानता हूँ, रॉजर स्कंक ने कहा। एंड यू नो, आई स्मेल सो बैड दैट ऑल द अदर एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी एंड द इनॉर्मस वाइज आउल सेड यू कुड हेल्प मी। और इनॉर्मस वाइज आउल ने बोला कि यू, एज आउल सेड यू कुड हेल्प मी, और मुझे उन आउल ने बताया था दैट आई शुड कम टू यू बिकॉज यू आर द ओनली वन हु कुड हेल्प मी। वेल मे बी, कम ऑन, डोंट गेट टू क्लोज। उसने बोला वेल यस, मैं कर सकता हूँ तुम्हारी हेल्प, कम ऑन इन, अंदर आओ, बट डोंट गेट टू क्लोज, मेरे ज्यादा नजदीक मनाना, बिकॉज यू आर स्मेलिंग बैड। नाउ इनसाइड जो देयर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स। नाउ इनसाइड जो क्या थी? ऑल द मैजिक things were inside and all jumbled together in a big dusty heap, एक बड़े से डस्टी से हीप में, because the wizard did not have any cleaning lady, क्योंकि विजार्ड के पास में कोई भी क्लीनिंग लेडी नहीं थी वहां पे। दैट्स व्हाई ऑल द थिंग्स वर ऑल जम्बल्ड अप एंड दे वर ऑल फुल ऑफ डस्ट। Why? Because he was a wizard and a very old man. उन्होंने बोला why? Because he was a wizard and a very old man. Because वो क्या थे? वो wizard थे और वो बहुत old man थे. Will he die? Now Joe is coming with another very wise question. Joe ने पूछा तो क्या ये मर जाएंगे क्या? Will he die? No, wizard don't die.
उन्होंने बोला नहीं, विजार्ड्स की कभी डेथ नहीं होती है। वेल ही रुमेज्ड अराउंड एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक। वेल उन्होंने, अब वो अपनी स्टोरी को फटाफट कंटिन्यू कर रहे थे इससे पहले कि जो इज अप विद अनदर क्वेश्चन। नाउ द फादर इज सेइंग जो, फिर उन्होंने इधर उधर ढूंढा एंड ही केम अप विद अ मैजिक स्टिक, वो एक मैजिक वैंड ढूंढ के लाए, जो जादू की छड़ी जिसको हम बोलते हैं। नाउ वो छड़ी मिलने के बाद में क्या हुआ, उन्होंने रॉजर स्कंक को कहा यस, एंड नाउ व्हाट यू वांटेड टू स्मेल लाइक, बताओ मुझे। रॉजर थॉट एंड ही सेड रोजेस, गुलाब जैसी खुशबू आनी चाहिए। यस गुड, जो अम्यूज सेड स्मगली, जो ने बहुत ही स्मगली बोला, वाओ यस बहुत अच्छा, अभी तो स्कंक में से गुलाब की खुशबू आएगी, इज गोइंग टू स्मेल लाइक रोज, हाउ नाइस। जैक फिक्स्ड हर विद अ ट्रांस लाइक गेज and chanted in the wizard's elderly irritable voice. Now Jack ने क्या किया, fixed her with a trance like gaze, एक trance like gaze, जैसे आप कोई मंत्र पढ़ते हो, you are in a position to hypnotize something, तो आप आई कांटेक्ट करते हो एंड यू चैंट ऑन सम वर्ड्स ना, उन्होंने वैसे ही उसकी तरफ चैंट किया, विजार्ड की एल्डरली भी इरिटेबल सी वॉइस निकाल के उन्होंने बोला, आब्रा का डाबरा हॉकस पू रॉजर स्कंक हाउ डू यू डू, roses boses pull an ear roger skunk you never fear and bingo, and he just wind the wand, और उन्होंने उसको छू कर देते हैं ना जैसे, तो he just said bingo, and with this bingo we can say कि yes, अब आगे के लिए जो चीज थी वो स्टार्ट हो गई, अब मैजिक हो गया है। नाउ ही पॉज्ड as a rapt expression widened out from his daughter's nostrils, forcing her eyebrows up and the lower lip down in the wide, noiseless grin, an expression in which Jack was startled to recognize his wife feigning pleasure at cocktail parties, and all of a sudden he whispered the whole inside of the wizard's house as was full of the smell of roses, roses. Roger Fish cried, and the wizard said, very cranky, that will be 7 pennies. अब ये पूरी बात करते करते, now the daughter was so rapt with an expression, eyes wide opened, ठीक है, and the expression came out from daughter's nostril, we can say, and forcing her eyebrows upside, lower lip in a wide noiseless grin, कि वो हंस रही थी लेकिन there was no sound in her laugh. ये expression ऐसा था in which Jack was suddenly startled, ये recognize करने के लिए that his wife was enjoying the pleasures at a cocktail party, and all of a sudden उसको ध्यान में नहीं रहा, and he was so confused that he whispered the whole inside of the wizard's house was full of the smell of roses, roses. Roger Fish cried, and the wizard said, very cranky, that will be 7 pennies. डैडी नाउ ही सेज व्हाट, अब क्या हुआ, उसने बोला अब तो मुझे रॉजर स्कंक की कहानी सुना रहे थे ना, देन व्हाई यू सेड रॉजर फिश, यहाँ पे देखो उसने अपने पापा की बात को पकड़ लिया, उसने बोला आपने गलती की, आपने रॉजर फिश बोल दिया, हम तो कहानी स्कंक की बोल रहे थे। ही सेज यस स्कंक, उसने बोला यू सेड रॉजर फिश, वाज़न्ट दैट सिली, कितनी सिली बात थी, आपने बीच में रॉजर फिश को घुसा दिया। Very silly of you, stupid old daddy. Where was I? Well, you know about the pennies. Okay, say it. Okay, Roger Skunk said, but all I have is 4 pennies. Now he began to cry. Joe made the crying face again, but this time उस पे sincerity का trace भी नहीं था, जिससे जैक बहुत annoyed हो गया, and downstairs some more furniture rumbled, and Claire shouldn't move things as she was 6 months pregnant and it would be their 3rd child. So wizard said, oh very well, मतलब जो distract हो रहा था बीच बीच में, and he says, so wizard said, oh very well, go to the end of the lane and turn around 3 times and look down the magic well, and there you are going to find 3 pennies, hurry up. So Roger Skunk वहां गए, at the end of the lane, turned around 3 times, magic well था वहां पे, उसमें उनको 3 pennies मिली, he took them and he came back to the wizard and was very happy and ran out into the woods, and all the other little animals, they gathered around him because he smelled so good, and they played tag, baseball, football, basketball, lacrosse, hockey, saucer and pick up sticks. What's pick up sticks? अब ये नया गेम आया, सो जो सडनली फिर से क्वेश्चन रेज हो गया, ये पिकअप स्टिक्स क्या होता है। फादर ने बोला इट्स अ गेम, ये गेम है, यू प्ले विद स्टिक्स, जो आप स्टिक से खेलते हो, लाइक द विजार्ड्स मैजिक वैंड। उसने पूछा विजार्ड की जादू की छड़ी जैसी छड़ियां होती हैं क्या, उसने बोला काइंड ऑफ वैसी, एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून एंड देन इट बिगिन टू गेट डार्क। पूरे आफ्टरनून वो खेले, फिर अंधेरा हुआ, दे ऑल रैन होम टू देयर मॉमीज, और सब जो क्रीचर्स थे दे ऑल रैन टू देयर होम टू देयर मॉमीज।
Jo was starting to fuss with her hands and look out of the window at the crack of the day, and that showed under the shade. She thought the story was all over. Jack didn't like women when they took anything for granted. He liked them to be apprehensive, hanging on his words. Now, Jo, are you listening? जैक को बिल्कुल पसंद नहीं था वुमेन्स जब कुछ और सोचती हैं. ही दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड. उन्हें ऐसा पसंद होता था दैट इफ दे आर टॉकिंग टू समवन दे शुड पे अटेंशन. बट जो का ध्यान इधर उधर हो रहा था एज दो जो थॉट की जैसे स्टोरी खत्म हो गई हो. नाउ जैक सेज जो आर यू लिसनिंग? यस, बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. रॉजर स्कंक्स मॉमी सेड व्हाट इज दैट ऑफुल स्मेल. उसने बोला यस मैं सुन रही हूँ. तो जैक सेज बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है. देखो रॉजर स्कंक की मम्मी ने कहा ये अजीब सी स्मेल कहाँ से आ रही है. What and Roger Skunk said, it's me mommy, I smell like roses. And she said, who made you smell like that? And he said, the wizard. And she said, well, of all the nerve, you came with me, you come with me, and we are going right back to that awful wizard. अब रॉजर स्कंक ने बोला ये मैं हूँ मम्मी एंड नाउ आई स्मेल लाइक रोजेस. एंड उसने बोला ये किसने किया तुम्हें ऐसी स्मेल वाला किसने बनाया. एंड ही सेज विजार्ड ने. तो मम्मी ने कहा वेल ऑफ नाउ ऑल द नर्व. कहने का मतलब उसकी मम्मी ने अपनी पूरी समझदारी से उसको बोला विद ऑल द माइंड सेटअप. शी सेज कम विद मी, मेरे साथ चलो, एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट ऑफुल विजार्ड. जो सेटअप. अब जो बैठ गई. जो को लगा ये क्या हुआ. हर हैंड्स डैबलिंग इन द एयर विद द जेन्युइन फ्राइट. ओ माय गॉड अब क्या होगा. ऐसा एक फ्राइटिंग एक्सप्रेशन उसने दिया. बट डैडी सेड देन ही सेड about all other little animals run away. Her hands scattered off on into the underbush. अब उसने बोला मम्मा फिर सारे एनिमल्स मुझसे दूर भाग जाएंगे. एंड ऐसा कह के उसने अपना हाथ छुड़ाया एंड ही जस्ट वेंट इनटू द अंडरबुश. ऑल राइट he said. उसने बोला ऑल राइट. उसने कहा बट मम्मी ऑल द अदर क्रीचर्स रन अवे. एंड शी सेड उसकी मम्मी ने बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. व्हेन ही सेड कि सारे बाकी क्रीचर्स मुझसे दूर भाग जाते हैं. यू स्मेल द वे अ लिटिल स्कंक शुड हैव. जैसे एक लिटिल स्कंक को स्मेल करनी चाहिए तुम बिल्कुल वैसी ही स्मेल करते थे. एंड यू हैव टू स्मेल लाइक दैट. एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू द विजार्ड. और मैं तुम्हें अभी ही उसी विजार्ड के पास में वापस लेके जा रही हूँ. आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू हिम. एंड शी टुक एन अम्ब्रेला एंड वेंट बैक. उसने एक अम्ब्रेला लिया एंड शी वेंट बैक. एंड रॉजर स्कंक विद रॉजर स्कंक के साथ में एंड हिट दैट विजार्ड राइट ओवर द हेड. मम्मी गई और उस विजार्ड को राइट ओवर द हेड शी हिट. नो जो सेड. जो ने बोला ओ नहीं. जैसे ही फादर ने बोला ना कि उसकी मम्मी ने उसको एक लगाई वहां पे तो जो सेड ओ नहीं नहीं नो ऐसा नहीं होना चाहिए. मॉम शुड नॉट हिट. तो उसने क्या बोला कि उसने बोला नहीं चोट तो उसने मार दी. उसने बोला नो जो सेड एंड पुट हर हैंड्स आउट टू टच हिज लिप्स. Yet, even in her agitation, did not quite dare to stop the source of truth. अब उस एजुकेशन उसने ऐसे अपना हाथ मुंह पे लगाया एंड शी सेज नो ऐसा नहीं होना चाहिए. बट इवन इन दैट एजिटेशन the things did not quite dare to stop the source of the truth. Inspiration came to her. एक inspiration आई and then the wizard hit her on the head. और फिर wizard just hit her on the head and the on her head and did not change that little skunk back. और उस little skunk को वापस चेंज नहीं किया. No he said. उसने बोला नहीं. The wizard said okay. उसने बोला तो क्या उसने उसको चेंज नहीं किया बिकॉज उसकी मम्मी ने उसकी पिटाई की थी. तो he says no. Wizard said okay and the Roger skunk did not smell of roses anymore. He smelled very bad again. उसने बोला नहीं और अब वो रोजेस की और स्मेल नहीं दे रहा था. He was smelling very bad again. But the other little animal, oh animal उसने बोला but बाकी दूसरे animals अब उनका क्या हुआ. Now here John, it's daddy's story. उन्होंने बोला जॉन ये डैडी की स्टोरी है ना. Shall daddy not tell you any more stories? क्या डैडी तुम्हें और स्टोरीज नहीं बताएंगे. हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू सिफ्टेड लाइट एस्टोन. यस सो सी. तो उन्होंने बोला कि जॉन इट्स डैडी स्टोरी. शेल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज. हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू सिफ्टेड लाइट एस्टाउंटेड. एंड दिस इज व्हाट हैपेंड देन. उन्होंने बोला और यही हुआ बस जो हुआ रॉजर के साथ में. रॉजर स्कंक and his mommy went home and they heard the woo woo and it was the choo choo
of the train bringing daddy skunk home from Boston. उन्होंने बोला और उसके बाद में द मॉमी स्कंक एंड द बेबी स्कंक, वो दोनों के दोनों, रॉजर स्कंक और उसकी मॉमी, दे वेंट होम, वो अपने घर चले गए. They heard the sound woo woo and it was choo choo, the train bringing daddy skunk home from the Boston. And they had a lima beans, celery liver, mashed potatoes and a pie. Oh my, for the dessert. और pie के लिए उनके पास dessert था, means they were having a nice dinner. And when Roger skunk was in bed, mommy skunk came up and hugged him and said he smelled like her little baby skunk again and she loved him very much. And that's the end of the story. उन्होंने बोला, and you know, after the dinner when it was bedtime and when the Roger skunk was in bed, mommy skunk came up, उसे हक किया उसकी मम्मी ने, and said कि अब वो उनके little baby skunk की तरह फिर से स्मेल कर रहा है, and she loved him very much. And that's the end of the story. But daddy, उसने बोला, पर daddy, उसने बोला, what जो, अब क्या, अभी भी is there anything left? Then did the other animals run away? उन्होंने बोला, क्या दूसरे animals फिर उससे दूर भाग गए? No, because eventually they got used to the way he was and did not mind it at all. उन्होंने बोला नहीं, because eventually धीरे धीरे रोज जब उनके साथ ऐसा ही होता था, वो उसको यूज टू हो गए और फिर उनको उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था उसकी स्मेल से. What's the eventuality? उसने बोला ये eventuality क्या होता है? In a little while. उन्होंने बोला उसका मतलब होता है, उसने बोला ना eventually, तो वो अब जो अपने तरीके से बोल रहे वो बोल रहे eventually ये क्या होता है, तो इसे इसका मतलब होता है in a little while, थोड़े समय में वो उसको यूज टू हो गया. एंड दैट वाज अ स्टूपिड मम्मी. उसने बोला बहुत स्टूपिड मम्मी थी वो. इट वाज नॉट. नाउ द डैडी इज सेइंग नहीं, शी वाज नॉट एट ऑल स्टूपिड. ही सेड विद रेयर एम्फेसिस एंड बिलीव फ्रॉम हर एक्सप्रेशंस. बहुत रेयर से एम्फेसिस दिया एंड ही बिलीव्ड. उन्होंने बोला नो, इट वाज नॉट एट ऑल, तुम ऐसा नहीं बोल सकती. एंड बिलीव्ड फ्रॉम हर एक्सप्रेशन, और उसके एक्सप्रेशन से ये चीज बिलीव हो रही थी. दैट शी रियलाइज्ड, उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया. He was defending her own mother to her, or something as odds. Now I want you to put your big heavy head in the pillow and have a good long nap. He adjusted the shades so not even a crack of the day showed, and tiptoed to the door in the pretense that she was already asleep. But when he turned, she was crouching on the top of the cover and staring at him. Hey, get under the covers and fall fast asleep. Bobby is asleep. She stood up and bounced gingerly on the springs. Daddy, what? Tomorrow I want you to tell me the story that wizard took the magic wand and hit the mommy. Her plump palm chopped forcefully right over the head. No, that's not the story. The point is that the little skunk loved his mommy more than he loved all the other little animals, and she knew what was right. No, tomorrow you say he hit that mommy, do it. She kicked her legs up and sat down on the bed with a great heave and complaint of the springs. Now, अब उसने बोला कि he was just behaving, she realized that he was defending her own mother. वो ऐसा रियलाइज कर रही थी कि ऐसा बोल के ना, जैक इज डिफेंडिंग हर ओन मदर टू हर, और समथिंग और दी और. उसने बोला नाउ, अब मैं चाहता हूँ that now the story is over, now you put your head on the pillow, heavy head on the pillow and have a good long nap. उन्होंने शेड वगैरह एडजस्ट किए. नॉट इवन अ क्रैक ऑफ द डे शोड, हल्की सी भी रोशनी नहीं थी. ही tiptoed to the door, ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे that she was fast already asleep. But when he turned to see back, तो उन्होंने देखा she was just sitting and crouching on the top of the cover, और वो अपने डैडी को देख रही थी. उसने बोला hey, get under the covers and fall fast asleep. Bobby is already asleep. वो खड़ी हो गई बेड पे. bounced gingerly on the springs. bed has springs, तो उस पे बाउंस करी. and she says daddy, अब वो बोल रहे हैं what, अब क्या हुआ? she says tomorrow, मैं चाहती हूँ आप मुझे एक स्टोरी सुनाओ. that wizard आया and wizard took the magic wand and hit that mommy. कौन सी मम्मी? स्कंक की मम्मी. her plump palms she chopped forcefully right over the head, right over the head. उन्होंने बोला हे भगवान, ये क्या बच्ची है? उन्होंने बोला no, that's not the story, ये स्टोरी नहीं है. उन्होंने बोला देखो जो, the point is that little skunk की जो मम्मी थी ना, लिटिल स्कंक अपनी मम्मी को बहुत प्यार करता था, मोर देन ही लव्ड ऑल दी अदर लिटिल एनिमल्स. एंड उसकी मम्मी जानती थी कि उसके लिए क्या सही है, वही उसकी मम्मी ने उसके साथ किया. बट जो वाज डिटरमाइंड एंड शी सेज नो, tomorrow you say he hid that mommy, do it, ऐसा होगा. She kicked her legs up and sat down on the bed with a great heave and complaints of the spring.
as she had done hundred of times before. वो springs जो थे proper नहीं थे, and she says that they are not proper. She again complained, and hundreds of times she has already complained about that before, except that this time she did not laugh. Say it daddy. बस फर्क ये था कि इस बार वो हंसी नहीं थी, हमेशा वो हंस के बोलती थी. उसने बोला say it daddy. Are you going to tell me a story? Well, we will see. Now at least have a rest. Stay on the bed. You are a good girl. उन्होंने बोला well देखेंगे. At least अभी के लिए रेस्ट करो. Stay on the bed. You are a good girl. Are you not? He closed the door and went downstairs. Claire had spread the newspaper and opened the paint can, and wearing an old shirt of his on the top of her maternity smock was stroking the chair rails with a dipped brush. Above him, footsteps vibrated and he called, John, shall I come up there and spank you? The footsteps hesitated. That was a long story, Claire said. अब उसने दरवाजा बंद किया फादर ने. He went downstairs. Claire न्यूज़पेपर्स बिछा चुकी थी and उसने पेंट कैन को ओपन किया था, and she was wearing a old shirt on the top of her maternity dress जो उसने पहन रखी थी उस पे, and she was stroking the chair rail with a dipped brush, paint dipped in the brush, and above him, उतने में ऊपर फुटस्टेप्स वापस से वाइब्रेट होने की आवाज आई. दैट इज जो इट्स स्टिल नॉट asleep. नाउ एट दैट मोमेंट उन्होंने क्या बोला, जो जैक ने बोला, जॉन शैल आई कम अप देयर एंड स्पैंक यू, आऊं क्या मैं तुम्हारी पिटाई करने के लिए वहां पे. तो उतने में ऐसा फील हुआ दैट द फुटस्टेप्स हेजिटेटेड. वो आ रही थी पीछे पीछे टू आस्क समथिंग, बट शी हेजिटेटेड एंड स्टॉप्ड देयर. नाउ क्लेयर सेड दैट वाज अ लॉन्ग स्टोरी. बहुत लंबी कहानी थी आज तो. पुअर किड, ही आंसर्ड, उसने बोला बेचारी बच्ची. एंड विद अटर वेयरीनेस वॉच्ड हिज वाइफ्स लेबर, और बहुत ही थके हुए के साथ में उसने देखा दैट द वाइफ वाज टू टायर्ड. वुड वर्क, a cage of moldings, rails and baseboard all around them. उन्होंने बोला कितना पेंट का काम है. Case of moldings, railroads, baseboards all around them. Was half old tan and half new ivory. आधा old tan है, आधा new ivory, and he felt caught in an ugly middle position. He just found himself that he is caught hold in this the middle of this ugly position. And though he as well felt his wife's presence in the cage with him, और उसको ऐसा लगा जैसे he is packed up in the cage and he was present in the cage with his wife, and he did not want to speak with her. वो नहीं चाहते थे उनसे बात करना. Work with her, speak with her, work with her, touch her, anything. He did not want to speak with her. उनको उससे बात नहीं करनी थी, उसके साथ काम नहीं करना था, उसको टच नहीं करना था, or do anything with her. Means he was so irritated, so tired, so stuck up between all these things that he was not in a mood to do anything or say anything. So this was, we can say, in this way the story ended. And what lesson actually he wanted to teach जो through the story was, कि वो जो को ये समझाना चाहते थे that आप जैसे भी हो ना, for your parents you are very special ones. Even if everybody finds you bad, nobody is going to love you, everybody is going to hate you, but your parents, they are still going to love you. आपके parents तो आपको क्या करेंगे, they will only love you the way you are. If you are going to change yourself for other people and you are wanting that your parents are going to love your new version, no, they want you same like your actual reality and old version that is actually their own child. तो उनको वैसा ही पसंद है. And if you agree to your parents wishes, that means you also love them and you have realized the thing, you have accepted the fact that you love your parents more than anybody else. That is why you happily agree to what your parents says. So this was the thing that you should know, that for you your parents are very special, and for your parents you are damn too very special. So this is all we can say for the chapter, and I hope you understood it well. Just go through the text, and if there are any doubts we can clear it in tomorrow's class. Okay, if you have understood it nicely, just raise your hands. हैंड रेस कर दो क्विक. अच्छी स्टोरी थी. एंड नाउ टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू थिंग दैट इज ऑन द फेस ऑफ इट. इट्स अगेन अ वेरी नाइस स्टोरी जिसको स्टार्ट करेंगे, और वी विल स्टार्ट लाइक इवेंट राइज एंड ओ लेवल, या इस तरह का कोई ड्रामा, वट एवर वी विल सी टुमारो कि हम क्या नया पार्ट स्टार्ट करते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड वील मीट इन टुमारोज क्लास.